Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Okay. Exercise 7.4. 7.4 was going on the day before yesterday. One question, first A was completed, but first B was given as a homework. All of you know that question number 7, exercise 7.4, page 152. 1B, I have given as a homework. Have you done? Question number 1B. Yes, Yes, sir. Okay. And question number 1C was also done. Okay. I think up to question number 2 was completed. 2 तक complete हो गया था ना? Hello. Friends, tell me, question number 2 was completed or not? 2. Second question, आप 7. Completed. Morning, sir. Completed. Okay, very good. होमवर्क था. morning, sir. ठीक है. सर सेकंड होमवर्क Morning, था. sir. सेकंड में कोई दिक्कत नहीं ना आई, हो गई ना? अब थर्ड क्वेश्चन. यस सर, हो गया. कोई दिक्कत नहीं. 5 more such pairs and put ये पेड़ के पास कौन बैठा है बाबा? पेड़ के पास कौन है बैठा? 5 pair more pairs, appropriate sign डालना है. अपने से आप 5 pair लिख सकते हो. इसमें अब आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राजीव, exercise 7.4, question number 3. You have to write yourself 5 pair and you use boxes between 2 fraction and write smaller or greater. Like first box I am giving 1/2 and denominators should be equal. Denominator and numerator. 1/5. Which one is greater? The first pair, the second pair, 4/3, and 4/5. The third one example, 2/6 and 3/6. Fourth one, 7/8 box, 9/8. 5 pair, one more pair should be written here. 1 whole 1/2 box, 1 whole 2/2, 1 whole 3/2. Okay, students, tell me, I have just five pairs. You have to put the smaller, greater sign. I am writing here 3/2. You have to put the smaller sign and greater sign or equal sign in the box. Tell me which one is greater, 1/2 or 1/5? Which one is greater? 1/2. 1/2. Very good. 1/2. And 4/3 and 4/5. Which one is greater? 4/3. Very good. 4/3. Very good. And 2/6 and 3/6. Which one? 3/6. 3/6. 3/6. And 7/8, 9/8. Which one is greater? 9/8. 8/8.
And भैया तुम नहीं सुन रहे हो? which one greater or smaller or equal? Sir, equal. Both are equal. Sir, equal. 200, 213 Equal. equal. Sir, equal. Okay, I have written for the question number 3. It was given to write 5 pair. As you have written, no problem. If you have not written, I have given example. You can write this example or other examples too. You are free to write. भैया ऊपर है, मेरे पीछे हो गए तो मत आना। भैया नहीं थे में। अबे हाँ वेदांतु के नाम श्रेया we are the super prize then super For the question solution of question number 4. Are you ready to listen question solution of 4? Yes, sir. See in question number 4. See in your book there is figure given 0 to 1 by 1, 0 by 2 to 2 by 2, 0 by 2. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। My video is सर यार वीडियो इज क्लियर। आप अपनी सर यार वीडियो वीडियो इज क्लियर। Okay, you see the figure 0 is divided in 2 part, that is divided in 3 part, 4 part, 5 part and 6 part. जब तुम्हारा क्लास होगा ना Fractions are तो written उसमें उससे पहले parts. पढ़ने चेक कर लेना, ठीक चेक कर लेना। और उसके जब क्लास होगा तब चेक करना कि तुम्हारे जो क्लास होता है कितना मिनट लगता है। हम अपना अभी चेक किए, मेरा अभी 114 GB है ना, तब चेक करें कितना है। 14 GB है तो अभी चेक करें कितना है। हाँ सुनिए, आपके बगल में कोई भाई यदि पढ़ रहा है, क्लास कर रहा है, तो आप उनको बोल दीजिए अपना म्यूट कर लें, उनकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ सुनो, फॉर द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 द बॉक्स इज गिवन बॉडी भी खेलता था, बॉडी अच्छा लगेगा। box is given there and you have to put 1 by 6, 1 by 3. Which sign will be put here? For the solution question number 4, A part, you have to put a smaller, greater or equal to sign in the box, like above. Here is written. Say, look at the board. Which sign should be written here? Which one is greater, 1 by 6 or 1 by 3? 1 by 6. 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3. Okay, students. Listen to me. 1 by 3 को फिगर में देख रहे हो? ये फिगर जो दिया है वो इसीलिए दिया है। Yes. ये फिगर बनाया है, यहाँ से ध्यान दीजिए। मैं फिगर जो दिया है उसको आपको समझा दूं क्यों दिया है। यहाँ है 0, यहाँ है 1 और इसको 6 पार्ट में बांट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अरे तो ये फिगर हम लोग को कॉपी में बना करके उसको डिवाइड करना होगा, कॉपी में ही। नहीं बनाना नहीं है, केवल आपको आंसर देना है। बना दिया है उसमें, आपको मैं समझा रहा हूँ। नो सर, ये हम लोग फेयर पर करेंगे ना, तो फेयर पर ये फिगर बनाना पड़ेगा। फेयर पर फिगर बना लेंगे, नहीं बनाएंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बिना फिगर का भी कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। ओके सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट है ना, तो 1 पार्ट को क्या बोलोगे? इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? 1 by 6। और ऐसा ही दूसरा एक है, 1 by 6 को सेट किया है। ऐसा ही दूसरा the same figure and part is only 3 part।
1 part, 2 part, and 3 part. And this one is shaded. See. Now you can write it 1/3 with the help of figure. You can say 1/3 shaded portion is greater than the shaded portion 1/6. सर तब तो ये इक्वल हो जाएगा। नहीं होगा इक्वल बेटा। ये एक 6 में से एक पार्ट को सेम ये रेक्टेंगल है उसके 6 पार्ट में से एक को शेड करेंगे तो 1/6 होगा और इसको 3 पार्ट करेंगे तो 3 में से एक करेंगे तो 1/3। तो 1/3 वाला शेडिंग बड़ा है कि नहीं है? दिस 1/3 Yes, sir. than 1/6 Yes, sir. बड़ा है ना? Yes, sir. आपको फिगर से बड़ा दिख रहा है ना? फिगर से ये समझाया गया है। तो इसी तरह बताएं दूसरे पार्ट में क्या होगा। बी में लिखा 3/4 and 2/6। 3/4 and 2/6। आप बताएं 3/4 and 2/6 different here denominator neither denominator equal nor numerator equal। इसी ना तो डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है और ना ही न्यूमरेटर। तो आप कैसे बताओगे कि कौन छोटा है बड़ा है? बोलिए। आप अपने फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, सी इन योर फिगर 3/4 फिगर में दिख रहा है 3/4 इतना बड़ा है 3/4 और उसके बाद ये 2/6 को कटाएंगे तो 1/3 ना आएगा। बोलिए। Yes, sir. 1/3 आएगा ना? तो आप 1/3 को बड़ा किए हो ये 3/4 बड़ा होगा ना? Yes, sir. 3/4 बड़ा होगा। इसको 4 पार्ट में बांटकर 3 को सेट कर देंगे और 3 पार्ट में बांटकर 1 को सेट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये ग्रेटर ये होगा। बोलिए। हो जाएगा? कर लोगे द रिमेनिंग पार्ट? Yes, sir. Even as a homework. You will do yourself? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am going further to solve question number 5. Sir, 1 minute लिख दीजिए। लिख लीजिए। Write fastly. Yes, sir. Done. Done. Okay. Sir, question number 4 मत मिटाइएगा। Question number 3 का सब मिटा दीजिए सर। Question number 4 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिगर बुक में दिया है और वहां से भी देखकर आप छोटा बड़ा बता सकते हैं। ये 1/6 में मैंने बनाकर एक को दिखा दिया एग्जांपल कि 6 में से एक पार्ट है और 1/3 इस उसी लेंथ को 3 पार्ट में करेंगे तो 1/3। तो ये 1/3 शेडिंग 1/6 से बड़ा है इसलिए हमने 1/3 को बड़ा दिखा दिया। लेकिन 3/4 को बता दूं। देखिए सेम शेडिंग को मैं 3/4 के रूप में दिखा रहा हूँ। ये 4 पार्ट में करेंगे और 4 पार्ट में जब आप करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए आप 4 पार्ट में तो ये शेडिंग क्या होगा? ये 3/4 होगा ना? बोलिए
ये 3/4 है और इसी को 6 पार्ट में जब आपने किया, देखो सर जो बुक में सेकंड ड्राइंग बना वो कैसे किया है? एक ऊपर है। सर कौन बताना है कौन सा नंबर बड़ा है तो कौन सा? देखो स्टूडेंट्स, ये बी के लिए मैंने कौन सा फिगर बनाया है? ये बी के लिए मैंने फिगर बनाया है। फिगर आपके बुक में दिया है लेकिन सेट नहीं किया है, मैं सेट करके क्लियर दिखा रहा हूँ। सर लेकिन जो सेकंड का फिगर बना है वो समझ में नहीं आ रहा है। बी का फिगर यहाँ पर समझिए आप, ये ए के लिए था, ये ए के लिए है फिगर। लेकिन हम बुक में का बात कर रहे हैं, बुक में जो बी के लिए फिगर बना वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं बुक वाला समझा दे रहा हूँ, रुक जाइए। ये बी के लिए सुनो, ये फिगर जो बनाया है वो इसमें ए बी सी नहीं लिखा है, फिगर केवल बनाया है। ए बी सी तो आपको क्वेश्चन से देखना है कि किस फ्रैक्शन का कौन सा फिगर है, ये फ्रैक्शन से आपको फिगर चूज करना पड़ेगा। पहले मेरी बात ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं बुक वाला भी बता रहा हूँ। देखिए ये लिखा है 3/6, 3/4, तो ये 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट सेडेड है, और 2/6 मतलब इसको 2/6 से रहने दीजिए। चलिए आपको सर मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद बोलना। अभी ये इसको 6 पार्ट में से 2 को सेट किया तो ये 3/4 वाला बड़ा दिख रहा है कि नहीं इससे? ये पार्ट बड़ा है, ये मैंने बड़ा दिखाया है। अब बोलिए क्या कहते हैं, बोलिए। अब एक बार बुक वाला फिगर, सर एक बार बुक वाला फिगर समझा दीजिए। अच्छा बिल्कुल, अब बुक वाला देखिए आप लोग। बुक वाला मैं बुक में देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देखेंगे। ओके, पेज नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के नीचे जो फिगर बनाया है उसमें 0 to 1 एक रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है? बोलिए। उसके नीचे जो फिगर बनाया है 0/2, 1/2 और 2/2, यानी सेम रेक्टेंगल को 2 पार्ट में बांट दिया है। तो ये 0 को 0/2 से शुरू किया है और उसके बाद एक पार्ट को 1/2 लिखा, दूसरे को 2/2। आप कटाएंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, 0/2 0 ही रहेगा, यानी 0 और 1 को 2 भाग में बांट दिया है। तो एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/2। और देखिए 0 और 1 को 3 पार्ट में बांटा है, तो ये 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, तो 3 पार्ट है। तो एक पार्ट कितना होगा, 1/3 होगा। ये 1/3, हाँ, 0 और 1 को 4 पार्ट में बांटा है, तो 1 पार्ट को 1/4, दूसरे को 2/4, 3/4। तो 3/4 आप देख रहे हैं ना कि 3/4 इतना 3 पार्ट हो जाएगा उस बड़े का, और 1/3 छोटा है। 1/3 2/6 को कटाने से आया है, तो 1/3 वाला फिगर से छोटा दिख रहा है कि नहीं? 1/3 देखिए और 3/4 देखिए, वो 3/4 बड़ा दिख रहा है आपके फिगर में। इसके बाद 5 पार्ट में बांटेगा तो एक पार्ट 1/5 होगा और लास्ट पार्ट 5/5, यानी 1 पार्ट 1 को बांटा गया है, 1 और 0 को। 6 पार्ट में बांटेगा तो 1 पार्ट में 1/6, 2/6। इस तरह इस फिगर के हेल्प से कह रहा है कि आप इसमें बॉक्स में स्मॉलर ग्रेटर लगाइए विद द हेल्प ऑफ फिगर। समझ में आ रहा है? फिगर को देखकर ही बताना है कि फिगर में दिखा रहा है आपको कि 2/6 कितना होगा, फिर 4/3, 3/4 कितना होगा। देख लीजिए 2/6 में इतना पार्ट है, 2 पार्ट, और 3/4 में इतना अधिक है, तो इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। जो भी फ्रैक्शन दिया है सब फ्रैक्शन इस फिगर में दिख रहा है। ओके ओके सर।
Yes, sir. एंड नाउ ये 5/6 और उसके बाद क्या दिया 5/5 कौन बड़ा है भाई 5/6 और 5/5 में कौन बड़ा 5/5. 5/5 बड़ा है ओके Yes, sir. नाउ यू विल डू योरसेल्फ आप इसको कर सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 सर बोलिए ये सर बता दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है क्या राजीव ठाकुर हाँ बोलो किस में बात कर रहे हैं? किस क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं फिर से बोलो क्या बोलना है क्या चाहते हैं पूछना सर 1/3 है ना सर न्यूमरेटर जैसा बताइए एक बार आगे बताएंगे बेटा अभी फिगर पर ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको फिगर से बताया अब आगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे है आगे मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 जो आप पूछना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के आधार पर बताइए तो जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल रहता है उसको भी आप ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा जिसमें न्यूमरेटर इक्वल रहता है उसमें नीचे वाला जो छोटा होता है वो बड़ा होता है पहले आप 6 पे हैं अब आपको अलग अलग रहेगा ना न्यूमरेटर इक्वल रहेगा ना डिनोमिनेटर तब आप बड़ा छोटा कैसे बताएंगे इसको थोड़ा शिवम प्रजापति से पूछा कीजिए आप सीखेंगे ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ सर पीछे का चैप्टर नहीं भेजे हैं 5 को ध्यान से सीखें लिसन टू मी अटेंटिवली क्वेश्चन नंबर 5 एक्सक्यूज मी सर सर हाँ बोलो सर हम पीछे का चैप्टर चाहिए आप भेज ही नहीं रहे हैं अभी नहीं क्या सर हम लोग कितने दिन से पीछे 3 चैप्टर से मांग रहे हैं 10 मिनट्स जब टाइम रनिंग आउट चलेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पूछिए पीछे से अभी आगे पढ़ ले दीजिए थोड़ा पीछे का पूछना नहीं है सर हाँ तो पीछे चैप्टर का जो आप करवाए हैं ना हाँ फिर तो क्या करना है उसमें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए सर वो नोट्स मांग रहा है यस हाँ सर ये अपना नाम दूसरा लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे मैं तो मेरे साथ 2 लड़के पढ़ रहे हैं बालक होमवर्क में शिवम प्रजापति है बात करो इससे पीछे का कहोगे कि आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए तो ये संभव नहीं है बेटा मैं इसमें से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहता है ओके सर हम लोग गूगल पे सर्च करके लिख लेंगे हाउ क्विकली कैन यू डू दिस फिल एप्रोप्रिएट हाँ who are talking who are sorry do this how quickly can you do this fill appropriate sign इसमें एप्रोप्रिएट साइन डालिए स्टूडेंट्स सी देखिए 1/2 and 1/5 1/2 आपको साइन डालना है 1/2 स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल टू का बोलिए 1/2 is greater 1/2 is larger 1/2 is greater 1/2 1/2 next one now I am doing
इसमें डी में बताइए आप, डी में कैसे करेंगे? जैसे 3/4 एंड 2/8 है। सर 4/3, 3/4। सर 2/8 कैसे बताएंगे? सर 3/4। 3/4। How can you say this one is greater? कैसे आप बताएंगे कि ये बड़ा है? इसके लिए क्या आपने क्या बेसिस लिया? कौन सा आधार लिया? करेंगे तो दोनों का 1/2 आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके कंपेयर करेंगे बाय रिड्यूसिंग इट। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो इसमें 2/2 I want to ask some questions, sir. सर डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. नीचे का ये एक पढ़े वहाँ से सुनिए, एक सुनते हैं। Excuse me, excuse me. आप डिनोमिनेटर Hello, excuse me, sir. तो ये बड़ा क्या दिख सर रहा नाम है? है। एक तो ये है, एक और है, नहीं, एक और आधार है। यदि आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 1/4 हो जाएगा। हेलो, excuse me, NP sir. तो भी बड़ा हो जाएगा। ये बीच में क्यों भाई बीच में बोल करके आप मुझे डिस्टर्ब करते हो? मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसी में सुनिए सुनिए करते हो। ये कौन सा तरीका है? पहले आपको मेरी बात Excuse me, NP sir. टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आप बीच में बोल देते हो। Excuse me, NP sir. Who is speaking? Me, Yuvraj. हाँ, what do you want to ask? बता दो। बोलो युवराज। सर हम लोग इसमें ये जो आप पूरा डिनोमिनेटर जैसे इक्वल किए हैं वैसे हम लोग भी इक्वल करेंगे या फिर डायरेक्ट साइन लगा देंगे? डायरेक्ट नहीं लगाइएगा, इक्वल लगाएंगे। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इक्वल है, उसमें आप करेंगे। ओके युवराज, व्हाट यू वांट टू आस्क? क्या पूछना चाहते हो? बोलो जल्दी। नो सर। Now we will go further. कौन सा पार्ट इसमें से बताया जाए? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का और प्रीतम सम क्वेश्चन पार्ट को बोल दीजिए। प्रीतम सम क्वेश्चन हाँ सर के प्रीतम सम क्वेश्चन के पार्ट। ओके के पार्ट ओके ओके के पार्ट आई एम गोइंग टू डू। प्रीतम सम क्वेश्चन 5/7 and 15/21. You can see that denominators are not equal. You need to equal denominator, so you should multiply this 7 which number with 21. 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा? बोलिए। 3। तो इसमें 3/3 आप 3/3 से कर लें। 5/7 into 3/3, then after equal to 15/21. 15/21, and you can write this 15/21 box 15/21. Now denominator has been equal, and you can easily say that both fractions are Equal. Very good. Both are equal. Equal sign will be put here. Here equal sign should be put. Admission award. बता दीजिए कैसे किए। Now which one part you want to solve? अब कौन चाहते हैं?
तो बता दीजिए। कौन सा? बोलो कौन बताया? सर जे पार्ट बता दीजिए। के तो बताया। जे सर जे। अच्छा जे फॉर जग। जे फॉर जग। जे फॉर जग, ओके। सर आई। जे इज नॉट देयर। जे तो नहीं दिया है भाई। है सर पीछे। मेरे बुक में आई तक दिया है। नो सर जे भी है। सर जे भी है। सर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। ओके लेट क्वेश्चन 6/10 and 4/5। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, आप प्लीज सॉल्व करके बता दीजिए। सर है क्वेश्चन जे 12/10 72। This one you 6/10। नो सर 6/10। सर 6/10। 6/10। Yes sir, 6/10 box 3/5। Box 3/5। 4/5। सर 4/5। सर 4/5। 4/5 नहीं दिया है ना, जे में 3/5। सर हमें बोलिए। सर 3/5 है। सर 3/5 है। सर 3/5 है। हाँ ठीक है, 3/5 मैंने लिखा। नाउ सर 4/5 है। डोंट टॉक। नो सर अब शांत रहो। You need to multiply 2/5 to 2/2 to make denominator equal। हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन आओ। Now you can tell which one is greater। पीडीएम खोला जाओ। Which one is greater? सर both is equal। Both are equal। Sir both are equal। These fractions are also Yes sir। equal। ये हो जाएगा। अब बोलिए 10 मिनट। सर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। 6/10 बॉक्स 4/5। सर बुक का है कि अलग से है? सर हाँ किसी में अलग अलग है, जैसे हम लोग में 3/5 है और उसमें 4/5 है। ठीक है, आप बोलिए कौन सा बोलना चाहते हैं? सर 6/10। 6/10 and box 4/5। 4/5। 4/5। ओके यू नीड। 4/5। हाँ ठीक है बेटा, 5 को आप 10 करना चाहेंगे ना, इसमें 2/2। So please talk in English, sir. 6/10 बोलो। 4/5 में आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ यू विल गेट 6/10 बॉक्स 8/10। बोथ denominators are equal and which one is greater you can see। आइडियल Which one? 8/10 is greater na? That's why 4/5 will be greater। Okay, understood? बोलिए। अभी वाले से पढ़ते हो तो आपके क्लास में कोई होगा। Yes sir। Today up to this question only। देखिए आज इससे आगे नहीं बताएंगे। टाइम दीजिएगा सर। is going to over। मैं हॉस्टल में कम बचा है। कोई नहीं। हाँ बोलिए। भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रीतम। हाँ ऑनलाइन आना। Now students tell me, listen to me। Question number 6। I am giving hint for question number 6। आ गया। See the question।
The following fractions represent just three different numbers from the three groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. इसको मैं और बता देता हूँ, चलिए इसको आप घर पे कर सकते हैं इजीली। हॉटस्पॉट ऑफ कर दो, आओ ना। दिन भर फ्री फायर, दिन भर फ्री, आओ ना। See question number 6. I am giving one following fractions are given. The following fractions represent just three different numbers. Separate them. Three groups separate करना है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 का 10 बता दीजिए। 1.2 का 1.2 Only 4 minutes is remaining. अब थोड़ा बता दीजिए कौन सा सर? एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल 1.2 का 10 नंबर। यस सर, समझ में नहीं आ रहा सर क्या होगा। प्रीतम, हाँ तो नेट चला जा रहा है क्या यार? तुम बार बार हट जा रहे हो। The question is medicine Yes, is sir. packed in the boxes of weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800? एक वैन में 800 kg लोड करने की कैपेसिटी है। एक मेडिसिन बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। How many such boxes can be loaded? कितने ऐसे बॉक्स? 177। तो आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg 500 gram is equal to 4.500 kg. Weight capacity of van. There is written 177. 800 kg की कैपेसिटी है। आप ऐसे कितने बॉक्स इसके अंदर लोड कर सकते हैं? नंबर ऑफ बॉक्स टू बी लोडेड। Number of boxes to be loaded. Is equal to 800 kg divided by 4.500 kg. Now can multiply 800 into 10 by 1 मिनट सर बस बचा है। into 10, you can write it 8,000 by 45. 8,000 by 45 हुआ। आप इसको कटा दीजिए 5 से। 5 1 जा 45, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. Here comes 160 by 9. 160 by 9 you divide it. आप 9 से डिवाइड कर दीजिए 160 को। तीनों कॉपी में से कोई भी कॉपी नहीं है। और भी सर टाइम नहीं है सर। देखिए ये आप 17